Amen. Amen. I want to tell you that you are on the winning side. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जीतने वाले पक्ष से हो। I said you are on the winning side. मैंने कहा आप जीते हुए पक्ष से हो। No matter what you are going through right now, फर्क नहीं पड़ता किस बात से आप आज गुजर रहे हो, it is temporary. वो थोड़े समय की है। Things are about to change in the name of Jesus. चीजें बदलने वाली हैं यीशु के नाम में। Reports are about to change in the name of Jesus. रिपोर्टें बदलने वाली हैं यीशु के नाम में। Stories are about to change in the name of आपकी Jesus. कहानियां बदलने वाली हैं यीशु के नाम में। Amen. This is not a relic. You have not come to see a relic. आप एक ऐतिहासिक स्थान को देखने नहीं आए, एक ऐतिहासिक वस्तु को देखने नहीं आए हैं। This is not Taj Mahal. ये ताजमहल नहीं है। That the man made it and died. एक मनुष्य ने इसको बनाया था फिर मर गया। This is the house of God. ये परमेश्वर का घर है, उसका भवन है। Sunday service is not a memorial service. संडे की जो सभा है वो शोक सभा नहीं है। It is a celebration service. ये एक हर्षोत्सव की सभा है। And the head of the church, और कलीसिया का जो सर है, he's right here. वो यहाँ मौजूद है। Jesus said, where 2 or 3 gather in my name, I am there in the midst of them. यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं उनके बीचों बीच मौजूद होता हूँ। Amen. आमेन। So if you are wise, अगर आप बुद्धिमान हो, and I believe you are, और मैं ये मानता हूँ कि आप हो, then you will not sit casually in a time which can change your generations. तो एक ऐसा समय जो आपके आने वाली पीढ़ियों को बदल सकता है, इस समय में आप खाली हाथ से या खाली मन से नहीं बैठेंगे यहाँ पर। Don't come to church to sit lightly and hear lightly the word of God, but in the sermon is a rhema word for you, for your children, for your generation, for your business, for your health, in Jesus name. कलीसिया आने के बाद आप बिना ध्यान दिए, बिना वचन को सुने हुए ना बैठे, क्योंकि वचन के प्रचार में वो रेमा शब्द है जो आपके व्यापार, आपके परिवार सबको बदल सकता है। It's not about making notes. नोट्स बनाना मुद्दा नहीं है। There are some people who have registered with notes and there is no fruit in their life. कुछ लोगों ने रजिस्टर्स भर दिए नोट्स बना के, पर कोई फल नहीं आया जिंदगी में। Don't misunderstand. It's good to make notes. गलत मत समझना, नोट्स बनाना अच्छा है। It's good. अच्छा है। But you can make notes and not hear the rhema. पर आप नोट्स बना सकते हो और रेमा ना सुनो, यह संभव है। Rhema comes to those who eagerly expect rhema. रेमा उनके पास आता है जो दिल जान से इंतजार करते हैं, उसकी उम्मीद लगाकर बैठते हैं। That means you have not just come to hear a nice sermon. You are saying, Jesus, I have come to get a word for myself. इसका मतलब आप एक अच्छा प्रचार सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं यीशु, आप आज मेरे लिए व्यक्तिगत वचन देने वाले हो। Because you have to understand that he is a personal God. क्योंकि आपको ये समझना है कि वो व्यक्तिगत रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। He knows your need. वो आपकी जरूरत को जानता है। He knows what you are going through right now. उसको पता है आप किस बात से गुजर रहे हो इस समय। Jesus said, यीशु ने कहा, if you have ears to hear, अगर तुम्हारे सुनने के कान हो, hear सुन लो what the Spirit जो आत्मा is saying कह रहा है to the churches. कलीसियाओं से। He's not talking about these physical वो ears. इन शारीरिक कानों की बात नहीं कर रहा है, He's talking about the ears of your heart. वो आपके दिल के कानों की बात कर रहा है। He's talking about the attitude with which you hear the word. वो उस रवैये की बात कर रहा है जिसके द्वारा आप वचन को सुनते हो। Amen. आमेन। So
During the sermon, सरमन के दौरान God will send forth His word. परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा। And if you're alert in the spirit, और अगर आप आत्मा में सचेत बैठे हो, have you seen the wicket keeper? आपने देखा है विकेट कीपर कैसे करते हैं? They are alert to catch it. वो ध्यान लगाकर बॉल पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, when the word comes, catch it. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जब वचन आए तो पकड़ लेना, Catch it. पकड़ लेना उसको, Catch it. पकड़ लेना वचन को। Revelation is not taught. Revelation is caught. परमेश्वर का प्रकाशन पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, वो पकड़ा जाता है। Amen. Don't just be satisfied with information. सिर्फ ज्ञान पाकर संतुष्ट मत हो जाना, We need revelation. हमें प्रकाशन चाहिए। Amen. आमेन। And revelation is not head knowledge. और प्रकाशन दिमाग से मिलने वाला ज्ञान नहीं है। You can hear a message, you can quote the preacher, you can preach the same message, but still not catch revelation. आप एक प्रचारक को सुनकर प्रचार में से क्या कहा बता सकते हो, लेकिन जो प्रकाशन है उसको ना पकड़ो, ये संभव है। I want to tell you that the Lord Jesus Christ is raising many champions in this place. मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जगह पर बहुत से महारथियों को उठाकर खड़ा कर रहे हैं। And can I tell you that champions are not born, champions are made. और मैं ये बता देता हूँ कि महारथी पैदा नहीं होते, महारथी बनाए जाते हैं। So don't say, oh pastor, इसलिए ये मत कहना, ओ पास्टर जी, I was born in a village. अरे मैं तो गांव में पैदा हुआ था। I was born in a village. मैं गांव में पैदा हुआ था। Oh, I don't know English. तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। Oh, I don't have any quality. वो मेरे पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। It's not about your talent, your quality, what you can do. Christ in you is the winning factor. आप कितने योग्य, कितने पढ़े लिखे हो, ये मुद्दा नहीं है। जो मसीह आपके अंदर रह रहा है वो आपकी जीत का मकसद, उसका कारण है। If you have Christ in you, अगर मसीह आपके अंदर है, you are the winning factor. तो आप जीतने वाला मुद्दा हो। Amen. So God is going to impart His word in you. परमेश्वर अपना वचन आपके अंदर प्रवाहित कर देगा। You're going to get a word injection. आपको वर्ड का इंजेक्शन मिलने वाला है। And the good news is that there is no side effect of this injection. और सबसे अच्छी खबर है कि इस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं होता। Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर, but be ready to catch when the word comes. लेकिन तैयार बैठना कि वचन को पकड़ लो जब वचन आता है आपके पास। Amen. आमेन। Hallelujah. Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं। And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो, they? किसके शब्द हैं ये? God's. परमेश्वर के। But where does He want to put His word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर। Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा। Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand.
और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है. The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की. And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा. The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा. I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए. Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए. Two things. दो चीजें. If you can just become conscious of these two things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत हो गए तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में. Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में. Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है. Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है. When you go home and there is no electricity, it's dark. What do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना. आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में. So they'll check. वो चेक करते हैं. Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में. अच्छा अच्छा. Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से. There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God. जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं. me. प्रभु करो मेरे लिए. God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही. Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे.